اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ایرادن ریاست بہار سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ بہار میں اسمبلی انتخابات کی تیاریاں زور و شور پر ہے، اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جتنے شڑینتر ہے اور ناپاک حرکتیں ہیں سب کرے گی بہار الیکشن جیتنے کے لیے۔ اب یہ دیکھیے، یہ خبر بھی آ چکی ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار کی گاڑی سے انتخابی مواد، الیکشن کے پرچار پرسار کا مواد برآمد ہوا ہے۔ پولیس نے کار کو ضبط کر لیا ہے۔ بہار الیکشن میں الیکشن کمیشن سرگرم ہو گئی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن اس وقت بھارت کی سب سے بدنام کمیٹی اگر کوئی ہے تو وہ الیکشن کمیشن۔ اپوزیشن پارٹیوں کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی چوری، مکاری اور غداری ہی کی وجہ سے بھارتیہ جنتا پارٹی ستہ اور اقتدار حاصل کرتی ہے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف تمام اپوزیشن پارٹیاں اس وقت الیکشن کمیشن کے خلاف ہے، اور الیکشن کمیشن کس طریقے سے کام کر رہا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے، اس کو لے کر ووٹ چور گدی چھوڑ کا نعرہ نریندر مودی کے لیے مشہور تو ہوا، لیکن الیکشن کمیشن بھی کافی بدنام ہوا ہے۔ ایرادن دوسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، کیرلا کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ 1 نومبر کو وزیر اعلیٰ پنرائی وجین اعلان کریں گے۔ کس بات کا اعلان کریں گے مکھیہ منتری جی کیرلا کے؟ وہ اعلان کریں گے کہ کیرلا کو انتہائی غربت سے پاک ریاست قرار دیا جائے گا۔ جی ہاں، کیرلا کو ایک بار پھر سماجی ترقی کی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے۔ کیرلا ریاست کو جلد ہی انتہائی غربت سے پاک ریاست قرار دیا جائے گا۔ یہ اعلان مکھیہ منتری 1 نومبر کو شام 5 بجے سینٹرل اسٹیڈیم میں کریں گے۔ اس تقریب میں، اس پروگرام میں ریاستی کابینہ کے تمام وزراء کے ساتھ ساتھ اپوزیشن پارٹیوں کے رہنماؤں کو، لیڈروں کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کیرلا کے اس ترقی کے پیچھے اگر کوئی چیز ہے تو وہ تعلیم ہے، علم ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے۔ کیرلا میں تعلیم یوں سمجھے کہ 100% تعلیم عام ہے۔ اس وجہ سے آج یہ اعلان بھی کیا جا رہا ہے کہ انتہائی غربت سے پاک ریاست کیرلا قرار دیا جائے گا۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر ممبئی شہر کے گھاٹکوپر علاقے سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ملک کی سب سے خطرناک سنگٹھن
या वो संगठन जो अंग्रेजों की वफादार रही है और स्वतंत्र सेनानियों के विरोध में खड़ी थी, जिन्होंने आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया और जिन्होंने मुल्क के आजाद होने के बाद 50 साल तक अपने हेडक्वार्टर नागपुर में तिरंगा झंडा भी नहीं लहराया। मुल्क की ऐसी दुश्मन संगठन जगह जगह अब रैलियां निकाल रही है और शक्ति प्रदर्शन कर रही है, मगर मैं आपको बता दूं कि अंबेडकरवादी संगठनाएं जोरदार आरएसएस के खिलाफ खड़ी हो रही है। इससे पहले औरंगाबाद में भी आपने एक वाकया देखा होगा कि जॉइन आरएसएस का एक बाकायदा कैंप लगा हुआ था। किस तरीके से अंबेडकरवादी शेरों ने बाकायदा इन लोगों को वहां से भगाया और अपनी दुकान बंद करने पर मजबूर किया। लेकिन अभी खबर फिलहाल आ रही है मुंबई के घाटकोपर से कि घाटकोपर में आरएसएस की रैली निकल रही थी कि जनाब अंबेडकरवादी शेरों ने जोरदार अंदाज में आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाए और इतना जमकर विरोध किया कि आरएसएस की रैली को उन गलियों से गुजरने नहीं दिया। आखिर अंबेडकरवादी शेरों की ललकार की वजह से बकायदा आरएसएस की रैली को हाईवे पर से गुजरना पड़ा। यह खबर बता रही है कि अब आरएसएस की घटिया विचारधाराओं के खिलाफ मुल्क में अंबेडकरवादी बड़ी मजबूत ताकत के साथ खड़े हो रहे हैं, होना भी चाहिए। और बाकायदा मुल्क के तमाम लोगों ने इस आरएसएस जिस पर कई बार बैन लगाया जा चुका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस पर बैन लगाया, और इस संगठन का बाकायदा मुल्क में अफरा तफरी, अमनो अमान और शांति को खत्म करने में सबसे बड़ा रोल रहा है और रहता है। पूरे मुल्क ने बाकायदा आरएसएस का विरोध जमकर करना चाहिए और अब वक्त आ गया है कि आरएसएस के नापाक चेहरे को लोग पहचानें और इसका कड़ा विरोध करें और मुल्क में अमनो शांति, एकता, एकात्मता, सद्भावना का माहौल बनाने के लिए आरएसएस के खिलाफ खड़े हों। आइए उत्तर प्रदेश से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। वैसे उत्तर प्रदेश से अफसोसनाक ही खबरें आती है। लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो नफरतों का माहौल बनाते हैं, जो घटिया किस्म का, नीच किस्म का माहौल बनाते हैं हिंदू मुसलमान में नफरतों का, वो आम आदमी नहीं बनाते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री बनाते हैं जिनका गंदा जहन है और वो वही गंदगी फैलाते हैं। हमेशा ये शब्द कि हिंदू मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, लौ जिहाद, लौ न जाने क्या क्या लाते हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा है, दिवाली भी खैरियत से गुजर गई, सारे त्यौहार खैरियत से गुजर रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पेट में काफी दर्द हो रहा है। अब उन्होंने हलाल मसनूआत यानी हलाल प्रोडक्ट को लेकर पाबंदी की हिमायत की। उत्तर प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट पर पाबंदी की का समर्थन किया योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ का दावा है कि हमने 25,000 करोड़ रुपए दहशतगर्दी और लौ जिहाद को रोकने में लगाए हैं, लेकिन असल तो यह है कि 25,000 रुपये का करोड़ रुपये आपने दहशतगर्दी और लौ जिहाद में जाये कर दिए हैं। अगले दिन दिल्ली से भी बड़ी बुरी खबर आ रही है। क्यों? इसलिए कि दिल्ली में भी अब भाजपा की हुकूमत है, इसलिए बुरी खबर ही आएगी, घटिया और नीच किस्म की ही खबरें आएंगी, मुसलमानों से नफरत की खबरें ही आएंगी। अब देखिए, ये एक और खबर आ रही है कि दिल्ली के वजीर आला यानी सीएम मुख्यमंत्री की दिवाली पार्टी में उर्दू सहाफियों को नहीं बुलाया गया, उर्दू सहाफियों को दूर रखा गया, दिवाली पार्टी से बेदखल किया गया, जिस पर अब लोग दिल्ली के सीएम पर और भारतीय जनता पार्टी पर थूक रहे हैं और हुकूमत पर अक़लियत मुखालिफ, अल्पसंख्यक विरोधी और इम्तियाजी रवैये के इल्जामात लोग लगा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के वज़ीर आला की दिवाली पार्टी में उर्दू सहाफ़ियों को, उर्दू पत्रकारों को दूर रखा गया। जाहिर बात है कि ये दिल्ली के वज़ीर आला और उनकी पार्टी की जो घटिया सोच है उसको दर्शाता है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही, जी हाँ, आप जानते हैं वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा इतना जबरदस्त लगा कि 15 दिन तक के हुकूमत और मीडिया बौखला गई, कोई जवाब नहीं दे पाई राहुल गांधी का। इसलिए फिर आई लव मोहम्मद का एक षड्यंत्र के जरिए से बाकायदा मुल्क का माहौल डाइवर्ट किया गया
वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान हटकाने के लिए बाकायदा कुछ कारिंदों को खड़ा किया गया और नापाक तरीके से, घटिया तरीके से मुल्क के माहौल को असल मुद्दों से हटाने के लिए डाइवर्ट किया गया। लेकिन अभी बेंगलुरु कर्नाटका के गुलबर्गा जिले के में वाक़े आलंदा असम्बली हल्के से एक मुबैना वोट चोरी को लेकर एक अहम इंकशाफ सामने आया है। बताया जा रहा है कि वहां पर जो वोट चोरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने और जो चोरी की, उसको लेकर यह खबर आ रही है कि एक वोट को हटवाने की कीमत 80 रुपये रखी गई थी। इस शिकंजे में 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 6,994 वोट हज़्फ करने की दरखास्त दी गई। SIT जांच में वोट चोरी का इंकशाफ हुआ है। SIT ने इस घोटाले में 6 अफराद को मेन मुलजिम करार देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर आ रही है कि महागठबंधन इंडिया अलायंस के वजीर आला मुख्यमंत्री के तौर पर जो चेहरा सामने आया है वो है तेजस्वी यादव का। खबर है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के वजीर आला के उम्मीदवार होंगे। मुकेश सहनी नायब वजीर आला उप मुख्यमंत्री होंगे। अशोक गहलोत ने यह ऐलान किया है। बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले महागठबंधन ने आखिरकार वजीर आला और नायब वजीर आला के चेहरों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अशोक गहलोत ने जुमेरात को पटना में मुनक्किदा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव को वजीर आला और मुकेश सहनी को नायब वजीर आला के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया। इस ऐलान के साथ ही महागठबंधन के अंदर इख्तिलाफात की अफवाहों पर लगाम लग गई। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बंगाल से, मगरबी बंगाल से खबर आ रही है। वहां की दबंग लेडी वजीर आला, आयरन लेडी मुख्यमंत्री ममता दीदी ने इल्जाम लगाया है कि मरकजी इमदाद से बंगाल को महरूम किया गया। उनका कहना है कि सियासी इंतकाम, राजनीतिक दुश्मनी के तहत कुदरती आफात के मुतासरीन को केंद्र सरकार ने अपने हाल पर छोड़ दिया, यानी कोई मदद नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस ने मगरबी बंगाल में हालिया बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइड से होने वाली तबाही के बावजूद मरकज की जानिब से माली इमदाद न दिए जाने पर सख्त रिएक्शन जाहिर किया है। पार्टी ने इल्जाम लगाया कि केंद्र सरकार राजनीतिक दुश्मनी के तहत बंगाल की जनता को उनकी सबसे बड़ी जरूरत के वक्त बेयारो मददगार छोड़ रही है। नाज़रीन, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, दिल्ली में पुलिस इनकाउंटर में सिग्मा गैंग के 4 अरकान हलाक हो गए हैं, यानी इनकाउंटर कर दिए गए हैं। और खबरें आ रही है, बताया जा रहा है कि बिहार असेंबली इंतखाबात यानी बिहार के इस इलेक्शन में दहशत फैलाने की इन लोगों की कोशिश थी। राजधानी के रोहिणी में दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में 4 बदनामे जमाना बदमाश मारे गए हैं, जिनमें गैंग लीडर रंजन पाठक भी शामिल था। बिहार के डीजीपी ने आज तक को बताया कि ये गैंग बिहार इंतखाबात के दौरान दहशत फैलाने की साजिश कर रहा था। रंजन पाठक और उसका गैंग सिग्मा एंड कंपनी गुज़िश्ता 6 सालों में बिहार के सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों में कई बड़े क्राइम और जराइम को अंजाम दे चुका है। बिहार के डीजीपी ने बताया कि यह गिरोह इंतखाबात के दौरान बड़े जराइम को अंजाम देने की मंसूबाबंदी कर रहा था। और यह भी बताया पुलिस ने कि रंजन पाठक और उसके साथी किराए के गुंडे, किराए के कातिल के तौर पर काम करते थे। सीतामढ़ी पुलिस काफी दिनों से इनकी तलाश कर रही थी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है डिजिटल गिरफ्तारी को लेकर। आप जानते हैं कि फ्रॉड, साइबर क्राइम आम हो चुके हैं और कई लोगों को बाकायदा ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमारे जलगांव शहर में भी साइबर क्राइम, फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया है। मशहूर यहाँ के जो लीडर है ललित कोल्हे, वो और उनके कई साथी गिरफ्तार है, जो फॉरेनर्स को चूना लगाते थे। यहाँ से बैठकर
अमेरिका और लंदन और फॉरेन के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर करोड़ों रुपए कमाते थे। तो अब डिजिटल गिरफ्तारी का एक मामला फरीदाबाद से सामने आया है। उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद से यह मामला सामने आया है कि एक शख्स को डिजिटल गिरफ्तारी में 5 दिन तक रखा गया और 81 लाख रुपए 81 लाख रुपए फ्रॉड का उन्हें शिकार बनाया गया है। तो खैर 68 साल बुजुर्ग डिजिटल गिरफ्तारी का शिकार बने, 5 दिन तक के उन्हें गिरफ्तार रखा गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसी कई कॉलें जो आपको मोबाइल पर आती है, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड हमारे मुल्क में आम हो चुका है और हमारी हुकूमत और हमारा 56 इंच का सीना इनका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट